Dear students, today's our topic is algorithms and flowcharts. These are basic tools that are used to develop the problem-solving logics. An algorithm is a finite sequence of explicit instructions that, when provided with a set of input values, produces an output and then terminates. It's called the algorithm. And the another thing is flowchart. It is pictorial representation of an algorithm in which the steps are drawn in the form of different shapes or boxes and the logical flow is indicated by arrows. How to solve any problem in a C and other programming languages? First is you have to clearly specify the problem to be solved. This is called the step 1. Step 2, that you draw the flowchart or write algorithm for the same. And the step 3 is that convert flowchart into program code, compile the program code into object code. After that, execute the object code. It's called the step 5. It is the last step of problem solving. Flowchart, there is a basic symbols as that computation, input output, decision box, start, stop button. And this is called the arrow is called the flow of control. The circle is called the connector. Example 1, we are taking an example here, adding three numbers. We have to add three numbers. So first you have to start read. We read A, B and C. After that P equals to A plus B plus C and return the output P. Then it is our problem solved that we have to input three inputs A, B and C and get the result in the form of P. It's called A plus B plus C. This is a simple example of adding three numbers for the how to draw flowcharts. Second is the larger of two numbers. First you start read X and Y and you have to make the comparisons that here is X greater than Y. Then you use decision tree. That's the two-way, one input and two output and we get only single output at the time. हम एक टाइम पे एक ही आउटपुट पे फ्लो कर सकते हैं either yes or no. X greater than Y इस कंडीशन के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेफ्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है. Condition is true, then we can move to yes and print the output X. It means the larger of two numbers is X. If X is X greater than Y is called false, then we print output Y. Then it means the larger number is Y. Both time the number program is completed and we get the output as larger between two numbers. Largest of three numbers. So we have to input three numbers X, Y and Z. After that we make comparison between X greater than Y. मेक कंपैरिजन बिटवीन x ग्रेटर देन y, x और y में कंपैरिजन करेंगे तो मैक्स इक्वल्स टू x, जो भी x और y में जो भी मैक्सिमम है उसको हम इसमें स्टोर कर देंगे मैक्स के अंदर और मैक्स में कंपैरिजन करने के बाद हम उसको z से कंपेयर करेंगे. अगर मैक्स का कंपैरिजन चेक करेंगे जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा मैक्स ग्रेटर देन z से कंपैरिजन करेंगे, अगर वो z से मैक्सिमम होगा तो आउटपुट मैक्स हो जाएगा और अदरवाइज आउटपुट z हो जाएगा. दिस इज द रिजल्ट ऑफ largest of three numbers. This is the concept we used. Sum of first n natural numbers that first we read n. Sum equals to 0 and count equals to 1. Count equals to 1 का मतलब क्या हुआ कि हम एक नंबर से स्टार्ट करेंगे और अभी हम एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द लूपिंग स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड द लूपिंग स्ट्रक्चर. इसमें हम एक इंस्ट्रक्शन को मोर देन वन टाइम फाइनाइट कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे. इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट. इसमें आपके जो स्टेप नंबर sum equals to sum plus count and count equals to count plus 1, it depends on the condition is that count greater than n. तब तक दोनों स्टेप फॉलो होते रहेंगे जब तक count greater than n नहीं हो जाता है. तो सबसे पहले हमने sum equals to 0 किया, sum equals to sum plus count, count equals to count plus 1 लूप चलता रहेगा तब तक जब तक कि count की वैल्यू greater than n नहीं हो जाती. जब तक काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन n नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा और सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस फॉलो होते रहेंगे और एट लास्ट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यूज करके हम इसके अंदर रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा किस फॉर्म में, आउट सम की फॉर्म. क्लियर.
सम इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब अप टू n स्क्वायर। उसमें हमें दो नंबर्स को ऐड और किसी नंबर को ऐड करना है, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट इनटू काउंट। काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कब तक चलती रहेगी, अप टू n। ठीक है, और लूप ये दोनों स्टेटमेंट सम इक्वल्स सम प्लस काउंट इनटू काउंट एंड काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ये दोनों स्टेप तब तक चलते रहेंगे जब तक काउंट की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो जाती। जब तक काउंट की वैल्यू n रहेगी, मतलब काउंट वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहेगी और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक काउंट ग्रेटर देन n नहीं हो जाता। और जब काउंट ग्रेटर देन n हो जाएगा, तब सम में जो भी डेटा स्टोर है वो एक्चुअली क्या होगा, सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर होगा, और वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा फॉर्म 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 to n terms। तो इसमें आपको क्या करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट इनटू काउंट प्लस 1 अप टू काउंट ग्रेटर देन n। सिंपल। ये जो एग्जांपल्स आपके सामने शो कर रहे हैं, इसमें अगर कोई भी आपको लॉजिकली या कोई भी कंसेप्चुअल आपको कोई इश्यू आता है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी फॉर द सेम। कंप्यूटिंग फैक्टोरियल, हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो प्रोडक्ट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू 1 क्यों, क्या, बिकॉज सम की वैल्यू हम जीरो करते थे, बट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो नहीं कर सकते, बिकॉज जब सम में हम क्या करते हैं, सम इक्वल्स टू जीरो का मीनिंग क्या हुआ, लास्ट वैल्यू जो स्टार्ट वैल्यू जो थी वो जीरो थी, जीरो में हम जो भी नंबर ऐड करते जाएंगे वो एडिशन होता रहेगा। बट प्रोडक्ट के अंदर आपकी वैल्यू वहां पर 1 रखना इसलिए जरूरी है कि अगर प्रोडक्ट की वैल्यू अगर हमने जीरो रख ली, तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, आपका जीरो ही आएगा। इसलिए प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 रखते हैं और काउंट की वैल्यू वही 1 से स्टार्ट करेंगे और अप टू ग्रेटर देन n तक चले। e की पावर x के लिए सिंपल, आपको कुछ नहीं, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म इनटू टर्म इनटू टर्म इनटू x अपॉन काउंट। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, और लूप कब तक चलेगा, जब तक कि काउंट ग्रेटर देन। e की पावर x सीरीज अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस एज इट इज। सिंपल सॉल्यूशन है, कोई इश्यू नहीं है। टर्म की वैल्यू लेस देन 0.00001 तक नहीं। Dear friends and dear students are here. You have to solve this question, roots of quadratic equation x square plus bx plus. You have to draw the flow chart of this problem and get the roots. How to get the roots? आपको बस ये याद रखना है कि roots, तीनों तरह के roots इसमें आना चाहिए। एक बार आपको मैसेज देना है, roots are imaginary and roots are equal, roots are same or equal, and roots are real and डिफरेंट। ये तीनों करके और तीनों की सॉल्यूशंस आपको एक साथ इसके अंदर निकालना है। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज दैट ग्रेड कंपटीशन। अगर आपके मार्क्स 90 है तो आप एक्सीलेंट AX मैसेज होगा, और 89 मार्क्स से लेके 80 तक आपकी रेंज है तो A, 79 से 70 है तो B, 69 to 60 है तो C, 59 to 50 है तो D, 49 to 35 है तो P मींस पास, एंड 34 मार्क्स टू लेस 0 है तो आपको कंपटीशन क्या होगा, फेल। इस तरह के आपको ग्रेड कंपटीशन के हिसाब से आपको फ्लो चार्ट डिजाइन करना है, जिसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने करता हूँ, क्या रिजल्ट जो है ये इस तरह से आएगा।